Today we have reached up to our last module, that is equipment management. The content of this topic has already been provided in your group. So we'll clear this topic today and we will finish our syllabus as per your SBT guideline. Now, after completing this video lecture, we will achieve our objective in these 4 forms. After completion of this lecture, we will be able to define what are different types of equipment available, what is criteria for selecting any equipment, what is economic life of an equipment, and the last one is what is equipment maintenance and how you do maintain the equipment and what are the different types of maintenance technique that we generally use. So we will complete each of these topics one by one, and after its completion we will have a clear understanding that what all was about the equipment management. Being a civil engineer, you will be posted at any site or in the office, and during the construction process there will be requirement of large number of equipments of different varieties depending upon the nature and the type of work you are having. So you have to you need to have a basic knowledge of equipment management. It means what are the types of equipment you need to require at that site, how you should select equipment among many others, what should be your economic life of that equipment, and during the course of your construction, during the course of your work, how you will perform maintenance activities of your equipment. Now we'll come to our first point, what are the different types of equipment. So here, depending upon the availability, commercial size and specification, the equipment can be classified into the following types. मतलब मार्केट में जो मटेरियल अवेलेबल है, इक्विपमेंट्स मटेरियल, उसकी साइज और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हम 2 तरह के क्लासिफिकेशन मेनली करते हैं. एक क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन and another one is special classification. Now we will see one by one कि कैसे कैसे equipments के अलग अलग types हैं. The first one is standard equipment. Now you got this point. This standard is normal, means something which has predefined characteristics which is readily available, that is standard. So standard equipments are those equipments which are commonly manufactured and easily available at prospective purchasers. मतलब आराम से मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है और आराम से ये मिल भी जाता है. The second point is they can be used for variety of construction operation without any difficulty and they are available in standard commercial sizes. तो आराम से ये अवेलेबल हो जाता है, प्लस ये बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है और इसकी अलग अलग कमर्शियल साइज भी है. ठीक है. इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी कम होती है एज कंपेयर टू स्पेशल इक्विपमेंट. जो अनदर इक्विपमेंट है टाइप का जो हमने पढ़ा, ये स्पेशल इक्विपमेंट, इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. तो उसके कंपेयर में इसकी प्राइस भी कम होती है. नाउ वी विल सी आवर थर्ड पॉइंट कि द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड इक्विपमेंट इज वेरी क्विक एंड इट इज रेडिली अवेलेबल इन द मार्केट. मतलब बहुत जल्दी, मतलब आप आज ऑर्डर दिए और हो सकता है कि विद इन वीक, विद इन 10 days, और डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी मार्केट से आपकी साइट कितने दूरी पे है, ये तुरंत आपकी डिलीवरी इक्विपमेंट की हो जाएगी. द फोर्थ वन इज द रिपेयर पार्ट्स ऑफ द स्टैंडर्ड इक्विपमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड मोर क्विकली इन शॉर्ट पीरियड. मतलब बहुत जल्दी आपको इसकी मेंटेनेंस करनी है, रिपेयर कुछ करना है, कुछ ब्रेक डाउन हो गया है, तो मेंटेनेंस भी इसका आराम से कर पाएंगे स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स का. द लास्ट वन इज इफ द कॉन्ट्रैक्टर इज नो लॉन्गर नीड to have unit of standard equipment, then he can
dispose it in a very easy manner at a more favorable price than the price of a special equipment. You see, sometimes you start the work, you have equipment. At the end of work, because of some financial constraint or because of the reason that you no longer require that equipment, you need to sell it. Because what you will use that equipment? If you keep that equipment day by day, it will reduce its economic life and it will become a scrap. So you need to sell it. So सेलिंग ऑफ स्टैंडर्ड इक्विपमेंट इज़ वेरी इजी. स्टैंडर्ड इक्विपमेंट को आराम से आप अच्छे रेट पे आप सेल कर सकते हैं, इसकी मार्केट वैल्यू भी अच्छी रहती है, तो ये बेचना भी इसको आसान है एज़ कम्पेयर टू स्पेशल इक्विपमेंट. हम लोग देखेंगे आगे कि ऐसा क्यों होता है. यू सी इन दिस स्लाइड देर आर कॉमन स्टैंडर्ड इक्विपमेंट बहुत सारे हैं. ट्रक है, मिक्सर है, क्रेन है, बुलडोजर है. ओके, सो दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ, ये आपकी क्रेन्स हैं, तो दीज ऑल आर टाइप्स इक्विपमेंट. कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मतलब वर्सटाइल यूज है, बहुत इजीली अवेलेबल है. इसके साइज भी अलग अलग कमर्शियल साइज आते हैं. इसकी मेंटेनेंस भी बहुत आराम से हो सकती है और आप बाद में काम करने के बाद इसको अगर सेल करना चाहें तो सेल करना भी आसान है. Now we will see what is special equipment. क्या है? The special equipment are those which are manufactured at the specific project and which does not have readily accessible spare parts. मतलब कुछ ऐसे इक्विपमेंट जो खासकर उसी प्रोजेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो, बाकी वो दूसरे प्रोजेक्ट में काम यूज करने के लायक नहीं हो, उसको बोलते हैं स्पेशल इक्विपमेंट्स. इसका मतलब है कि दूसरे प्रोजेक्ट में अगर आप उसको ले जाएंगे तो उसका यूज एप्लीकेशन उतना नहीं हो पाएगा या ना के बराबर होगा. दूसरी बात कि जो एक स्पेशल इक्विपमेंट्स हैं उसके जो उनकी जो साइज है और उनकी जो पार्ट्स हैं वो इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है. तो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट. नाउ यू सी the selection of special equipment should be made carefully after the proper financial analysis. It means जब आप स्पेशल इक्विपमेंट की खरीद के पहले you should have a clear understanding कि इसमें बहुत ज़्यादा खर्च आएगा, ह्यूज इन्वेस्टमेंट आएगा, प्लस इसकी रीसेल वैल्यू भी उतनी ज़्यादा नहीं है, प्लस इसको दूसरे साइड पे आप यूज़ भी नहीं कर सकते, ये उतना वर्सटाइल भी नहीं होता, तो क्यों इसको खरीदेंगे. तो ये इसको खरीद रहे हैं तो ये फाइनेंशियल वायबल हमारे लिए है कि नहीं. सो यू हैव टू कीप दैट इन योर माइंड. तीसरा बात ये है, ध्यान रखना है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द केस ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा है. एंड देयर इज रिस्क ऑफ, इफ देयर इज रिस्क ऑफ चेंज इन डिजाइन, इट कैन नॉट बी यूज इकोनॉमिकली ऑन द अनदर प्रोजेक्ट. अगर डिजाइन में कुछ चेंज हो गया तो वो दूसरे प्रोजेक्ट में आप यूज इसको नहीं कर सकते. तो बेसिकली आप ये समझिए कि स्पेशल इक्विपमेंट्स आर प्रोजेक्ट बेस्ड इक्विपमेंट. वो किसी खास एक काम को करने के लिए या किसी खास पार्टिकुलर साइट पे काम करने के लिए यूज होता है. उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत हैवी होती है. आपको इनको ऑर्डर देने के लिए पहले से आपको प्री ऑर्डर करना पड़ता है, कंपनी को तभी बना के देती है. इसकी स्पेयर पार्ट और रिपेयर पार्ट, मेंटेनेंस पार्ट भी इसकी आसानी से नहीं होती, जल्दी नहीं मिलती है. प्लस इसको आप अगर रीसेल करना चाहें तो रीसेल भी नहीं जल्दी होता है और उसका इफेक्टिव कॉस्ट नहीं मिलता है. तो ये कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्पेशल इक्विपमेंट के. नाउ एंड मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड. हम देखेंगे कि क्या टिपिकल एग्जांपल्स हैं स्पेशल इक्विपमेंट्स के. ये पॉइंट हमने पहले ही क्लियर कर लिया है कि स्पेशल ऑर्डर इज टू बी गिवन to the manufacturer of special equipment and a special price is to be given. Therefore the delivery of the equipment can be obtained after a long period. मतलब चूंकि टाइम लगेगा तो बहुत समय के, थोड़े समय के बाद आपकी डिलीवरी होगी, तो पहले से ही आपको ऑर्डर दिया जाता है ताकि आपकी जो डिलीवरी हो, एक तो ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन उस टाइम फ्रेम में ही हो जाए. ऐसा नहीं कि आप दुकान में गए और आप एक स्पेशल इक्विपमेंट, जैसे आपने बोला कि टनल बोरिंग मशीन हमको चाहिए, ठीक है,
तो या कनाल मशीन चाहिए आपको, कनाल बोरिंग मशीन चाहिए, तो एक दिन में बना के नहीं देगा, तो उसके लिए बहुत समय लगता है, उसके इंडस्ट्रीज को पहले से आपको ऑर्डर देना पड़ता है। समझ में आ गया? तो द एग्जाम्पल ऑफ द सम ऑफ द इक्विपमेंट इंक्लूड टनल बोरिंग मशीन्स, लार्ज हॉलिंग यूनिट्स, बहुत बड़े बड़े हॉलिंग यूनिट्स, एंड वेरी लार्ज सॉवेल, बहुत बड़े बड़े सॉवेल जो कि 70 से 80 क्यूबिक मीटर का जो है मटेरियल एक साथ वो उसको प्लेस कर सकता है, उठा सकता है। मेनली यूज इन द स्ट्रिप माइनिंग कोर्स। तो ये इस तरह के इक्विपमेंट, जैसे कि आपको कनाल बनाने के लिए एक कनाल मशीन आता है, वो पूरा कनाल शेप का ही रहता है और वो कनाल बनाने में ही काम आता है। जैसे टनल को आपको काटना है, तो टनल को काटने के लिए एक मशीन आता है, इसको टनल बोरिंग TBM कहते हैं। तो ये स्पेशल इक्विपमेंट ही है। अब आप इसको दूसरी जगह आप क्या यूज़ करेंगे? इसका कोई यूज़ नहीं है। फिर है बहुत लार्ज हॉलिंग यूनिट्स, या तो बहुत बड़े बड़े शॉवेल्स जो कि यूज़ होते हैं मेनली माइनिंग कोल में, जो 70 से 80 क्यूबिक मीटर एक साथ ले सकता है माइनिंग किस चीज़ का, कोल का। तो वो सब चीज़ दूसरे साइड पे एकदम अनइकोनॉमिकल होगा। तो इस तरह के इक्विपमेंट कहेंगे स्पेशल इक्विपमेंट्स। नाउ वी विल सी सम ऑफ द एग्जांपल्स। इस तरह ये सब है। देखिए कोल माइंस में ये बहुत बड़े शॉवेल्स, ये देखिए एक बार में कितना ज़्यादा वॉल्यूम कोल उठा के डाल रहा है। ठीक है, इस तरह की ये TBM है, टनल बोरिंग मशीन है। ये बहुत बड़े बड़े हॉलिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि दूसरे साइड पे ले जाएंगे, तो इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट इतनी हाई होगी कि आप यूज ही नहीं कर पाएंगे इसको। तो दीज आर द सम ऑफ द कॉमन टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड एंड स्पेशल इक्विपमेंट्स दैट वी हैव क्लियर्ड। नाउ यू सी, आपको मैं एक आपके भाषा में एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आप स्टैंडर्ड एंड स्पेशल इक्विपमेंट्स के बारे में मान लीजिए कि आपको जो है आपके घर में आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको गाड़ी चाहिए। तो आपने क्या किया, एक कार परचेस कर लिया, एक कार परचेस कर लिया और कार से आप जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो एक कार जो है वो आपका स्टैंडर्ड इक्विपमेंट की तरह हो गया, क्योंकि उसको आराम से प्लेस कर लिए, तुरंत आपका ऑर्डर भी आ गया, मेंटेनेंस भी तुरंत है, उसको बेच भी सकते हैं। मान लीजिए आपने बोला कि नहीं, हम ऑफिस जो है कार से नहीं जाएंगे, हम ऑफिस कैसे जाएंगे, हम ऑफिस कार के जगह पे हम हवाई जहाज से जाएंगे। ठीक है, बढ़िया, या हेलीकॉप्टर से जाएंगे। अब आपने क्या किया, हेलीकॉप्टर को तो सबसे पहले दुकान, आपके नॉर्मल दुकान में तो मिलेगा नहीं। अब हेलीकॉप्टर को आप प्लेस कीजिएगा उसकी ऑर्डर कंपनी में, हेलीकॉप्टर आपको देगा, वो टाइम लेगा। उसके बाद जब हेलीकॉप्टर आप यूज़ करेंगे तो बेसिकली हेलीकॉप्टर को यूज़ करने के बाद जो उसको स्पेयर पार्ट मिलेगा वो भी आसानी से नहीं मिलेगा, उसकी मेंटेनेंस प्रॉब्लम, प्लस आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी बहुत हैवी हो गया। तो यू कैन सी कि काम एक ही कर रहा है, आपको ट्रांसपोर्ट ही कर रहा है, बट दोनों का अलग अलग नेचर हो गया। तो जो कार हो गया वो आपका स्टैंडर्ड इक्विपमेंट हो गया, या हेलीकॉप्टर जो स्पेशल इक्विपमेंट हो गया। तो इस तरह से आप नॉर्मल लाइफ में भी इक्विपमेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन की में देखेंगे कि व्हाट आर द क्राइटेरियाज फॉर सेलेक्टिंग इक्विपमेंट। कौन कौन से क्राइटेरियाज ऐसे हैं जिसके बेसिस पे हम इक्विपमेंट का सिलेक्शन कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप किसी इक्विपमेंट का सिलेक्शन कर रहे हैं तो ये आप यू मस्ट इंश्योर कि आपको क्या एक स्टैंडर्ड इक्विपमेंट से ही आपका काम हो जाएगा या स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो बेसिकली मैक्सिमम जगह जो होता है स्टैंडर्ड इक्विपमेंट से ही आपका काम हो जाता है। स्पेशल इक्विपमेंट बहुत ही रेयर ऑफ रेयर केसेस या उस तरह के खासकर स्पेशल कंस्ट्रक्शन के काम में आपको यूज होता है। तो यहाँ पे आप उसको अलग कर लेंगे। फिर आप ये देखेंगे कि बहुत सारे इक्विपमेंट अगर अवेलेबल है स्टैंडर्ड के केस में या स्पेशल इक्विपमेंट में रेंज है, तो उसका पार्ट्स किसका रिप्लेसमेंट करना आसान है। तो ऐसा नहीं कि ऐसा इक्विपमेंट आप ऑर्डर कर रहे हैं जिसकी पार्ट्स जो अवेलेबल आपकी स्टेट में नहीं है इजीली, या आपकी कंट्री में इजीली अवेलेबल नहीं है, उसको बाहर से इंपोर्ट करके मंगवाएं, तो फिर आपके लिए वो जो है वो बेवकूफ़ी हो जाएगी उसको खरीदना और उसको यूज़ करना। तीसरा पार्ट आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट, कि मान लीजिए कि आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कि आपका इतना हैवी हो जाए आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट कि आपको उसको चलाना, उसको फीड करना ही मुश्किल हो जाए, उसमें उसकी पावर कंजम्पशन इतनी हैवी हो जाए जो है, या इलेक्ट्रिसिटी डीजल बेस्ड या पेट्रोल बेस्ड कुछ भी रहे। तो अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट उसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपका वो इक्विपमेंट उस जगह काम करने लायक नहीं रहेगा। तो दैट शुड ऑल्सो बी योर क्राइटेरिया कि किसका ऑपरेटिंग कॉस्ट, रेंज ऑफ इक्विपमेंट्स में अगर आपको चूज करना हो तो दिस इज मेजर फैक्टर कि इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट किसका ज़्यादा है।
उसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, उसके बाद आपको ये देखना है कि कोई ऐसा इक्विपमेंट ले लीजिए, मान लीजिए कोई एक ही काम कर रहा है वो, और कुछ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ले लिए जिसको बहुत जगह काम करे, जैसे बुलडोजर ले ले आप, तो बुलडोजर से क्या होता है, बहुत सारा काम हॉलो, ये आपका जो है सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी करता है, एक दो स्टोरेज तक सामान को होइस्ट भी करता है, ग्राउंड को क्लियर करने में भी काम करता है। तो इस तरह के अगर मैक्सिमम काम को ये कर ले तो इक्विपमेंट को ज़्यादा प्रेफर दीजिए बजाय उस इक्विपमेंट को जो कि एक ही काम उसका फिक्स हो, वो और कोई दूसरा काम नहीं कर पाए। इसको कहते हैं हम लोग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स। ऑपरेशन, अब ईज ऑफ ऑपरेशन, अब इसका ऑपरेशन करना आसान हो। अब आपने ऐसा इक्विपमेंट ले आया कि जो ऑपरेटर है आपको इसको चला ही नहीं पा रहा है, उसको यूज ही नहीं, ऑपरेट ही नहीं कर पा रहा है, या तो उसके जो ऑपरेशन में काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है वो, तो फिर आपको ऑपरेटर जो इक्विपमेंट है उसके इंजीनियर्स को बुलाना पड़ेगा, बहुत ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और फिर आपके ऑपरेटर्स को भी बहुत स्किल्ड होना पड़ेगा इसके लिए। तो ऑपरेशन करना आसान हो ये भी ध्यान में। इकोनॉमी तो है ही, आप कोई भी काम करेंगे तो अपने इकोनॉमी, अपने बजट, अपने पॉकेट को देख के करेंगे ताकि फ्यूचर में आपको लॉस ना हो जाए। कंडीशन ऑफ साइट, अब साइट के कंडीशन पे भी डिपेंड करेगा, अलग अलग इक्विपमेंट सुटेबल होते हैं अलग अलग साइट के कंडीशंस पे, तो ये भी आपको जो है ध्यान में रखना चाहिए। एक चीज़ और जो कि ध्यान में रखना चाहिए कि या तो आप जो है इक्विपमेंट को परचेज करेंगे या तो हायर करेंगे। तो आप देख लेंगे कि हमको कितना दिन तक उस इक्विपमेंट का काम है। परचेज मतलब या तो आप स्टैंडर्ड इक्विपमेंट को खरीद लेंगे उस काम के लिए, या तो हायर करेंगे, या तो मतलब इसको भाड़ा पे लेके चलाएंगे। तो बेसिकली आपको ये ध्यान देना पड़ता है कि आपका कितने दिन तक काम है, और उसका पूरा एक्चुअली एनालिसिस करके फिर हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो ये कुछ बेसिक क्राइटेरिया है किसी भी इक्विपमेंट के सेलेक्ट करने में। परहैप्स यू गॉट ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ we will come to our next topic, that is economic life of an equipment. Economic life of an equipment क्या है? This is period over which the equipment can be operated at an acceptable operating cost and productivity. It means कि ऐसा equipment ऐसा पीरियड जिसमें इक्विपमेंट जो है एक्सेप्टेबल ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब जो कॉस्ट हमारा लग रहा है इनपुट वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए और अच्छी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। मतलब कि मान लीजिए कि कोई इक्विपमेंट आप लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप उसमें आपको बहुत ज़्यादा खर्च पड़ रहा है एज ए इनपुट, या तो उसकी में डीजल का ज़्यादा खर्च पड़ रहा है, या तो उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा है, या ऑपरेटर कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा है। बहुत तरह का कॉस्ट होता है इनपुट कॉस्ट। तो मतलब कि आपका कम खर्च में मैक्सिमम प्रॉफिट अगर वो दे रहा है और विथ गुड प्रोडक्टिविटी, ऐसा नहीं है उसकी आउटपुट भी अच्छी होनी चाहिए, तो उसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन इक्विपमेंट। द इकोनॉमिक लाइफ इज जनरली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ईयर, आवर्स और किलोमीटर। मतलब कि कितना चलता है कोई भी इक्विपमेंट, वो मेजर होगा या तो कितने साल तक वो चल रहा है, या तो कितने घंटे तक वो चलेगा, या तो मान लीजिए कोई ऐसा हॉलिंग इंस्ट्रूमेंट तो कितने किलोमीटर तक वो चलेगा। हॉलिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे ट्रक, ट्रैक्टर, डंपर, दीज आर हॉलिंग इंस्ट्रूमेंट, तो इतने किलोमीटर तक ये प्रॉपर चलेगा। उसके बाद उसमें बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा खर्च होने लगेगा, तो फिर आपको वो फायदेमंद नहीं होगा वो चलाने के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन इक्विपमेंट। बेसिकली आई विल शो यू वन ग्राफ फ्रॉम विच यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। मान लीजिए कि ये ग्राफ है, ये प्रॉफिट है वाई एक्सिस पे, और ये उसका टाइम है। मान लीजिए कोई इक्विपमेंट आपने खरीदा, तो आपने देखा कि जो प्रॉफिट का कर्व है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, और जो ये ग्राफ है आपने देखा कि मान लीजिए कोई इक्विपमेंट खरीदा, आपने देखा कि 14 साल के बाद ये पूरी तरह से फिजिकल लाइफ, मतलब पूरी तरह से वो डिस्ट्रॉय हो गया 14 साल में, ठीक है। और आपने देखा कि मान लीजिए कि 12-13 साल तक वो मोटा मोटी प्रॉफिट तो दे ही रहा था, यहाँ तक मान लीजिए ये 11 साल तक वो प्रॉफिट दे रहा था। लेकिन बोला इकोनॉमिक लाइफ क्या होगा, तो इकोनॉमिक लाइफ बोला कि वहीं तक होगा जहां तक इसका मैक्सिमम प्रॉफिट आप अचीव कर रहे हैं। मतलब उसके बाद आपको लॉस होने लगा, और उसमें किस तरह का लॉस हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रिपेयर का ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस का ज़रूरत है, लुब्रिकेटिंग ऑयल की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको फिर वहाँ के बाद से आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि इसको हटा ही दो, इसको हटा के बेच दो, कुछ वैल्यू आता है तो उसको रख लो, अदरवाइज ये जो है आगे में
लॉस करेगा। इसके जगह पे अगर हम न्यू इंस्ट्रूमेंट कोई खरीद लें तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो बेसिकली आपको इकोनॉमिक लाइफ के बारे में मैं समझाना चाहता हूँ एक एग्जांपल से, यू विल अंडरस्टैंड। मान लीजिए आपने एक बाइक खरीदी, ठीक है, मान लीजिए आपने एक बाइक खरीदी। आपने बाइक खरीदी जब नया नया बाइक था तो अच्छा चल रहा था, आपकी माइलेज अच्छी दे रही थी, आपकी माइलेज 60 की एमपीएच दे रही थी, आप बोले वाह बढ़िया चल रहा है, और इसमें मेंटेनेंस भी कम लग रहा था। नॉर्मली आपने फ्री में उसको वर्कशॉप में जाके अपना आपके फ्री टाइम ये करवाया, आप उसका कंडीशनिंग करवाया। उसके बाद क्या हुआ कि 5 साल अच्छा चला, 5 साल चलने के बाद क्या हुआ, आपकी माइलेज जो 60 थी वो घट के 55 आ गई। और उसके बाद आपको क्या हुआ कि पहले आप एक बार जाते थे वर्कशॉप इसके प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए, अब आप साल में एक बार जाते थे, आपको साल में 4 बार जाना पड़ा, तब भी आपने रखा। फिर आप इसकी जो माइलेज घट के 50 आ गई, और फिर आपको साल में 6 बार जाना पड़ा इसका वर्कशॉप ट्रीटमेंट करने के लिए, इसको प्रॉपर करने के लिए। तो आप बोले कि नहीं भैया यहाँ तक तो ठीक था, इसके बाद आप इसको छोड़ दो, ये बहुत ज़्यादा लॉस कर रहा है, इससे अच्छा इसको बेच दो। इसका मतलब कि आपका शुरू से लेके 5 साल तक जहाँ तक आपको लॉस कम लग रहा था, मेंटेनेंस में भी और माइलेज भी अच्छी प्रोडक्टिविटी दे रही थी, तब तक ठीक हुआ। उसके बाद आप अगर नहीं बेचते तो आपको लॉस बहुत ज़्यादा पड़ता। तो ये जो इकोनॉमिक लाइफ आपकी बाइक की, जो आपने 5 साल तक उसको प्रॉपर यूज़ किया, जिसमें इसकी माइलेज भी अच्छी थी और मेंटेनेंस भी कम थी, इसी को आप कहते हैं इकोनॉमिक लाइफ। जैसे इक्विपमेंट है वो वहाँ पे आपका इक्विपमेंट आपकी बाइक हो जाएगी। परहैप्स यू गॉट माई पॉइंट। वट नाउ वी विल सी व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक लाइफ। ये फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक लाइफ में इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट कितना है शुरू का खरीदने में, तो ये भी एक इकोनॉमिक लाइफ को उसको ये करता है, इफेक्ट करता है। दूसरा डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन मतलब किसी भी चीज़ को आप खरीदते हैं तो आज के बाद नया उसका वैल्यू घटता रहता है, किसी का भी प्राइस घटता रहेगा। मान लीजिए कि वट एवर बी द प्राइस, आज आपने जो प्राइस में किसी चीज़ को लिया, आज से 1 साल बाद घटेगा, फिर 2 साल बाद और घटेगा, फिर 3 साल बाद और घटेगा। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें उसकी वैल्यू जो है उसको घटती है, इसको बोलते हैं हम लोग डेप्रिशिएशन। ठीक है, तो डेप्रिशिएशन पे भी इकोनॉमिक लाइफ का इफेक्ट होता है। तीसरा यूसेज ऑफ इक्विपमेंट। आपने इक्विपमेंट को कैसा यूज़ किया, अब आपने इक्विपमेंट को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, उसका मैक्सिमम इफिशियंसी निकाल लिया, और इतना मतलब कि आपकी इक्विपमेंट की बहुत ज़्यादा यूसेज थी, तो हो सकता है कि जो इक्विपमेंट का इकोनॉमिक लाइफ 4 साल था, आपकी यूसेज के कारण वो 2 साल में ही खत्म हो जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूसेज ऑफ इक्विपमेंट। चौथा है पॉइंट है मेंटेनेंस। अब प्रॉपर अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो जल्दी से बात है वो इक्विपमेंट जल्दी खराब हो जाएगा। जिसको 4 साल चलना है वो 3 साल में ही उसकी इकोनॉमिक लाइफ फिनिश हो जाएगी। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन इक्विपमेंट is based. Now we will come forward to our last topic, that is types of maintenance. Now you see types of maintenance. What do you mean by types of maintenance? Basically maintenance क्या होता है? Maintenance मतलब होता है कि अगर आपके इक्विपमेंट में कुछ खराब हो गई है या आपको शक है खराब हो जाएगा, तो पहले से ही जो डिफॉल्ट जो डिफेक्टिव पार्ट है उसको रिप्लेस कर देना। तो उस पार्ट को रिप्लेस कर देना ताकि जो आपका इक्विपमेंट ऑन ए होल है वो प्रॉपर चले। तो बेसिकली जो है मेंटेनेंस जो है 2 तरह से होता है। बेसिकली मेंटेनेंस कैन बी डिफाइंड कि एक मेंटेनेंस होता है कि जब आपका डिफेक्टिव हो गया, मतलब जब वो खराब हो गया, ठीक है। और एक होता है कि बिफोर एनी प्रॉब्लम, मतलब वो अभी खराब नहीं हुआ, वो चल रहा है, उसके समय पे मेंटेनेंस। तो जो मेंटेनेंस आप करते हैं उसके डिफेक्टिव होने पे, जब वो खराब हो जाता है उसके होने पे जो मेंटेनेंस करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। और एक मेंटेनेंस जो उसके खराब होने से पहले आप करते हैं, उस मेंटेनेंस में आता है 2, एक होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और दूसरा होता है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेक डाउन मेंटेनेंस वो मेंटेनेंस है जब आपका कोई इक्विपमेंट खराब हो जाता है, तो बेसिकली आप उसको मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस इख्तियार करते हैं उसे कहते हैं ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप। इट अलाउज इक्विपमेंट टू ऑपरेट अंटिल इट फेल्स, जब तक ये फेल ना हो जाए। इट इज रिपेयर आएगा, तो जब फेल हो जाएगा तो रिपेयर करके उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। या तो रिपेयर कर सकते हैं अगर रिपेयरेबल है, अगर रिपेयरेबल नहीं है तो उसको रिप्लेस कर लीजिए। ऑल्दो दिस टाइप
वर्क रिक्वायर लिटिल प्लानिंग, ड्रॉबैक इज अनएक्सेप्टेबल इन लार्ज पॉइंट्स। मतलब कि मतलब ये चूंकि कन्वेंशनल है, पहले से यही मेंटेनेंस किया जाता था मेनली, लेकिन आसान तो है क्योंकि खराब हो गया तो चेंज कर दो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत इमरजेंसी सिचुएशन में ये खराब हो जाएगा और आपको पार्ट इसका नहीं मिलेगा, तो उस समय आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए ये इनएफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैन पावर, ये मतलब अचानक से आपका खराब पावर का, ये मैन पावर का भी इनएफिशिएंट यूज होगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा खराब होगा, टाइम भी बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा। इसीलिए इस तरह के इक्विपमेंट जो पहले मेंटेनेंस में यूज ब्रेकडाउन, इस तरह के मेंटेनेंस को हम लोग कम यूज करते हैं, पहला मेंटेनेंस। दूसरा मेंटेनेंस होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या है, किसी चीज को प्रिवेंट करना। मतलब इन दिस मेथड गोल इज टू प्रिवेंट ब्रेकडाउन एंड सो एक्सटेंड प्लांट ऑपरेटिंग टाइम बाय मीन्स ऑफ शेड्यूल्ड इंस्पेक्शन एंड पीरियोडिक overhauling of equipment. It achieves this, does not reduces cost, but it's popularly it wants because of skyrocketing cost. मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने क्या किया, इक्विपमेंट को टाइमली चेक किया, ठीक है। टाइमली चेक किया मतलब अभी इक्विपमेंट डाला तो आपको पता है कि 4 महीने के बाद इसमें हो सकता है ये पार्ट, ये चूंकि रोटरी पार्ट है, ये खराब हो जाएगा, तो आपने चेक किया, टाइमली इसको चेक किया, उसको हटा दिया। या तो हो सकता है आपको पता है कि इतने दिन चलने के बाद या इतना आउटपुट देने के बाद उसका ऑयल को आपको चेंज करना पड़ता है, तो आपने सीधे उसके ऑयल को हटा के नया ऑयल डाल दिया। तो इस तरह के इक्विपमेंट को आप क्या करते हैं कि मतलब इस तरह के मेंटेनेंस को आप क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। मतलब आपने प्रिवेंट कर दिया, ठीक है। वो पीरियोडिक आपका इंस्पेक्शन पता है आपको कि इतने इतने पीरियड में होना है, तो आपने उसको खुद ब खुद चेंज कर दिया फेल होने से पहले। फेल हो जाएगा तो आपका ब्रेकडाउन में चला जाएगा, लेकिन आप फेल होने से पहले आप उसको चेंज कर देते हैं, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब तीसरा एक मेंटेनेंस है, you see the third maintenance is predictive maintenance, ये प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस का कंसेप्ट जो है, ये दोनों मेंटेनेंस के बेसिस पे, ब्रेकडाउन और प्रिवेंटिव। It borrows strong points from the first two types but add advanced scientific technique to maximize the operating time and eliminate the unnecessary work. Predictive maintenance में क्या होता है, equipment is run to a point just short of failure। मतलब कि इसमें क्या करते हैं, इक्विपमेंट को फेल होने देते हैं, मतलब इक्विपमेंट को उस पॉइंट तक हम काम करने देते हैं जहां तक वो फेल नहीं किया है, और जैसे ही फेल होने वाला, उसके फेल होने से पहले ही उसमें हम मेंटेन कर देंगे, रिपेयर कर देंगे या रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर्स आर टेकन ओनली फॉर द इक्विपमेंट हुज फेल्योर वुड क्रिएट अ सीरियस हैजार्ड और हुज ऑपरेशन इज स्पेशली क्रिटिकल। मत लीजिए कि ऐसा आप कर रहे हैं कि आपका कोई इक्विपमेंट था, ठीक है, वो चल रहा था, आप उसको ध्यान दिए हुए थे, आपको पता है कि इस पॉइंट के बाद वो फेल कर जाएगा, तो जस्ट आप तुरंत उसको चेंज कर दीजिए। मतलब इसमें शेड्यूल्ड अप नहीं है, इसमें आपको मॉनिटरिंग करनी है। इससे क्या हो रहा है कि आपका मैक्सिमम दिन तक आप उस इक्विपमेंट को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से ज्यादा इफिशिएंट है। क्यों? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में तो आप 3 महीना में चेंज कर देना, आप देख भी नहीं रहे कि खराब हुआ ना हुआ, आपको पता था 3 महीना के बाद इसका पार्ट जो है खराब हो जाएगा, तो यू चेंज इट। बट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में यू विल वेट अंटिल इट इज ऑन वर्ज ऑफ बीइंग फेल्योर। अब ये जब तक फेल नहीं हो सकता है कि ये जो 3 महीने में आपने जो पार्ट चेंज कर दिया, हो सकता है वो 4 महीने में फेल करता, तो ये 4 महीने के जस्ट कुछ दिन पहले तक इसको यूज करते हैं। तो दीज टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स आर बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप इक्विपमेंट को मेंटेन करते हैं तो दीज टाइप ऑफ इक्विपमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप देम इन माइंड। नाउ एक एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं, दैट शुड बी इन योर माइंड। मान लीजिए आपकी बाइक है, इस तीनों एग्जाम्पल को आपकी बाइक से मैं समझाता हूँ। यू हैव अ बाइक, अब आप बाइक चला रहे हैं, यूज कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छा।
आपने कुछ ध्यान नहीं दिया, चला रहे हैं बस, एक बार भी आपने इसको वर्कशॉप नहीं ले गया इसके मेंटेनेंस के लिए, कुछ नहीं, अचानक से किसी दिन आपका बाइक बंद हो गया, तब आपने ध्यान दिया कि अरे मेरा बाइक में जो है इंजन खराब हो गया है, या मेरे बाइक का जो है ऑयल चेंज करना था। तो इस तरह का मेंटेनेंस जब अचानक खराब हो जाने के बाद करते हैं उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। दूसरा, आप बाइक चला रहे हैं लेकिन आप समझदार हैं। अब जब समझदार हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आपको पता है कि 4 महीने के बाद आपका ऑयल चेंज करना होता है, 1 सप्ताह के बाद आपके व्हील, आपके जो ट्यूब में हवा भराना होता है, और हर एक 4 महीने में आपको वर्कशॉप ले जाना पड़ता है इसके मेंटेनेंस के लिए। तो इस तरह के मेंटेनेंस को बोलेंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। जब आप शेड्यूल अप कर देते हैं मेंटेनेंस को कि आपको 1 महीने में ये करना है, 2 महीने में ये करना है, 3, अब ये फेल होने से पहले आपने इसको कर लिया, तो इसको बोलते हैं प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। अब एक और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, अब एक और बहुत तेज कोई निकल गया, उसने क्या किया, उसने बोला अच्छा हम खर्च नहीं करेंगे जब तक ये फेल ना कर जाए। वो क्या करेगा, वो रोज रेगुलरली 2 दिन 3 दिन पे अपना बाइक का कंडीशन देखेगा, ऑयल का कंडीशन देखेगा, अपने व्हील का कंडीशन देखेगा, इंजन का वो कंडीशन देख सकता है उसकी नॉइज लेवल से या कोई और साइंटिफिक मेथड से वो चेक करता रहेगा। और जैसे ही उसको लगेगा कि नहीं कुछ ज़्यादा आज कंडीशन खराब हो रहा है, तो जस्ट फेल्योर होने से पहले वो जाएगा और वर्कशॉप में जो ठीक करा लेगा। तो इस तरह से वो शेड्यूल अप नहीं किया, वो जस्ट फेल्योर से पहले जो है उसको प्रिडिक्ट किया कि हो सकता है ये फेल हो जाए, और वहाँ पे जाएगा तो वर्कशॉप वाला उसको बोलेगा हाँ आपका ये तो ये ऑयल चेंज करना था, आपका तो इंजन में ये प्रॉब्लम है। तो उस तरह के इक्विपमेंट को, उस तरह के मेंटेनेंस को हम लोग कहेंगे प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। This all about this is all about the types of maintenance. Perhaps you got all this point. I tried my best to convey all the topics of advanced construction technical equipment. If somehow I failed to make you understand, you can post, and again I'll try to make you understand all those points on the topics. From my side, best of luck. This as it is last lecture, but if you require any suggestion, or if you require more videos, or if you have any confusion, I'll upload video again. Keep revising, and best of luck for your exam. Thank you.